So hi friends, welcome you in the Physics Soch. Myself Ankit. How are you all? I hope you are learning so many things from us and you are enjoying our content very much. So today in this lecture we will understand a very important topic of magnetism, that is Fleming's left hand rule, right hand rule and screw rule. Clear? So ये वो टॉपिक हैं जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं. In many times I heard from the students like उनको they easily calculate the magnitude of magnetic field, but they are unable to calculate the direction of magnetic field. So how to calculate the direction of magnetic field we will learn in this lecture. Clear? So one by one we will start from Fleming left hand rule. We are not discussing any definition here, we are just learning the concept. Clear? So book में लिखा हुआ definition you can note down, but we are here to learn the definition concept. Clear? So what Fleming left hand rule? First we will understand what is Fleming left hand rule. So देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या है टॉपिक, Fleming left hand rule. So left, you need to use your left hand. I will tell you these three methods. Apart from that, I will tell you one algebraic method. Algebraic method से how to calculate the direction. Vectorly, how to calculate the direction. Clear? So what Fleming's left hand rule, what does it say? According to Fleming left hand rule, stretch your left hand, three fingers, the thumb, middle finger and the second most. Clear? तो ध्यान से देखिए, this is a Fleming left hand rule. This is y axis, this is x axis and thumb is in the direction of z axis. Clear? Please watch it carefully. I am drawing the same thing here on this plain board. So what I say, this is y axis, this is x axis and thumb is in the direction of z axis. So this is y axis, x axis and thumb is in the direction of z axis. So I can't draw z axis here, but I am drawing in this way. Just try to understand, this is z axis, this is out of the plane. Clear? So देखिए ध्यान से, this is the thumb, z axis, this is this finger, middle finger is in the direction of x axis. Thumb represent what? Thumb represent the force acting on the conductor. Clear? Acting on the wire. It indicates the direction of force. Clear? And the middle finger is in the direction of current, or we can say that velocity of किसका? Positive charge. Middle finger क्या बताएगा आपको? Direction of positive charge और करंट. As we know that, हमें क्या पता है कि करंट का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? करंट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? देखिए ध्यान से, thumb is in direction of force, middle finger is in the direction of current or velocity, and this finger is in the direction of magnetic field. Clear? समझ आ गया? तो ध्यान से देखिए, ये जो फिंगर है ये क्या बताएगी आपको? मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? किसी कोई डाउट यहाँ तक? Anybody else? If you have any doubt, I will tell you one example after that. Please tell me if you have any doubt. Clear?
So see here, just see the example. And one more important thing, these are x, y, z axis, these are the three fingers. These are mutually perpendicular. You can see this finger and this finger are perpendicular to each other. This thumb is perpendicular to these two fingers. Clear? So always remember, force is perpendicular to the F is perpendicular to the plane of magnetic field and velocity, or we can say that magnetic field and current. Clear? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फोर्स की जो फोर्स इंडिकेट एफ, ये जो हमारा थंब है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. क्लियर? एंड ऑलवेज टेक द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हेयर. क्लियर? नाउ वी विल सी द वन एग्जाम्पल एंड यू विल टेल मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स from the Fleming left hand rule. Clear? So tell me, this is my conductor, this is the conductor and this is the magnetic field. Cross का means क्या? What does it means? Cross means magnetic field into the plane. Dot means out of the plane. Magnetic field is out of the plane. I am writing here. Let's see. Magnetic field out of the plane. Clear? This is into the plane. So I want to know what is the, देखिए this is the direction of current in this wire. I want to know what is the direction of force. Can anybody tell me how to calculate? Apply Fleming left hand rule. Just see, this is the what, देखिए करंट की डायरेक्शन ले जाइए, देखिए ऐसे है, ध्यान से देखिए. दिस फिंगर ऐसे याद रखिए, फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, एम मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करंट. ठीक है? अब देखिए करंट की डायरेक्शन मैंने अपना फिंगर कर दिया, लेकिन क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर थोड़े ना है, दिस इज इनटू द प्लेन. सो मेरा कैसे होगा डायरेक्शन? ऐसे होगा. ध्यान से देखिए. देखिए जो मेरा ये वाला फिंगर है, दिस फिंगर, ट्राई टू सी, दिस फिंगर इज इनटू द प्लेन एंड दिस फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और वी कैन सेट वेलोसिटी. तो एंड थंब इंडिकेट्स, थंब किस डायरेक्शन में? देखिए अगर मैं जस्ट सी, इफ आई टेक दिस टू बी द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. This is positive z axis, this is positive y axis, this is positive x axis. Into the plane means negative. Clear? तो ध्यान से देखिए, this is the magnetic field is in the inside the plane, current is in this direction. Thumb कहाँ पर है? देखिए ध्यान से, thumb is perpendicular to these two plane. देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और करंट मेरा ये रहा, इसके परपेंडिकुलर है. मेरा क्या है? फोर्स. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. क्या होगी डायरेक्शन? ध्यान से देखिए, क्या होगी बताइए? ध्यान से देखिए, इससे लगाइए पॉजिटिव वाई एक्सिस. क्लियर? क्या होगी? पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा आपका फोर्स. क्लियर? नाउ आई एम आस्किंग इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, तो क्या होगा? देखिए, जो आप हमेशा याद रखिए, आप फिंगर को इतना ट्विस्ट नहीं कर सकते. आई विल टेल यू एल्जेब्रिक मेथड ऑल्सो. बट अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है कि मान लीजिए आउट ऑफ द प्लेन में आप नहीं निकाल पा रहे, इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, तो इनटू द प्लेन में आपने जो निकाला, वॉट एवर यू कैलकुलेट, जस्ट मेक इट अपोजिट, उसके अपोजिट होगा. तो अगर आउट इनटू द प्लेन में अगर फोर्स पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो आउट ऑफ द प्लेन में कहाँ होगा? फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस. आप देख भी सकते हैं. क्लियर? समझ आ गया? देखिए ध्यान से, ये मेरा फिंगर है, all three should be perpendicular. This is magnetic field, this is velocity of current, और we can say that velocity और current, force कहाँ है? देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस. अगर आपको ट्विस्ट करने में दिक्कत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनसाइड वाला निकालिए. मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड थी तब फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, तब निकाल लीजिए, उसका अपोजिट कर देंगे, देन यू विल गेट द फोर्स
direction when the magnetic field is out of the plane. Clear? This is the Fleming what? Fleming left hand rule. अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, अब ध्यान देखिए, अगर मेरा दिस इज अ कंडक्टर एंड current is flowing along the x axis, clear, and I am asking you what is the direction of force if the magnetic field is also in this direction. देखिए क्या कोई डायरेक्शन होगी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और वी कैन सेड करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए. क्या है, कैन बी अप्लाई विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? नो. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर देन यू आर नॉट सपोज टू सी डायरेक्टली. आप कह सकते हैं फोर्स क्या होगा, जीरो. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, राइट हैंड थंब रूल, और वी कैन से राइट हैंड पाम रूल. व्हाट इज इट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक बहुत आसान है. अब मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आपसे ही कहता है एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन. नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्लियर? अब आपको मैंने क्या बताया था कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा मिडिल फिंगर होता है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किसका था? पॉजिटिव चार्ज का. लेकिन यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन. क्लियर? इलेक्ट्रॉन फोर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या फ्लो करता है? करंट. ऐसे तो फ्लो करता है करंट. क्लियर? और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज. तो आप कुछ नहीं करना इसमें क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक करंट का डायरेक्शन ड्रॉ करना. क्लियर? एंड कैलकुलेट फोर्स विद रेस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन. जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे उसका अपोजिट क्या होगा? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है. क्लियर? मैंने जस्ट अज्यूम कर लिया कि मेरा करंट क्या होगा, ऐसे होगा. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, करंट ये रहा. लेट अस सपोज मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन आया है पॉजिटिव वाई एक्सिस. क्लियर? लेकिन ये जो फोर्स है किस पे है? दिस इज फोर्स व्हेन द करंट क्या है? पॉजिटिव चार्ज. ये फोर्स किस पे निकला है? पॉजिटिव चार्ज पे. लेकिन आपको किस पे चाहिए? यू नीड ऑन इलेक्ट्रॉन. तो कुछ नहीं करना, इसका नेगेटिव ले लेना है. तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? माइनस वाई एक्सिस. क्लियर? तो ये तो रहा आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. नाउ मूव टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. द क्वेश्चन आपको जब आएंगे देन आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट. राइट हैंड पाम रूल इज वेरी वेरी इजी. फॉर एग्जाम्पल we are just learning right hand palm rule. Just try to understand what is right hand palm rule. नाम से समझना है राइट हैंड, यू नीड टू यूज योर राइट हैंड. कंसिडर ए कंडक्टर and in this conductor current I is flowing. Clear? समझना गया? You need to calculate what is the direction of magnetic field at this point due to this conductor. So you will use what? Right hand palm rule. It is very very easy. Just अपना right hand use करिए. This is your right hand. Clear? करंट की डायरेक्शन में अपना थंब करिए एंड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट. देन यू विल सी, आप इसको कह रहे हैं, देखिए थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड माय फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट. तो क्या होगा देखिए, फील्ड कहाँ होगी? वेयर विल बी द फील्ड? आप फिंगर को ट्विस्ट करिए, किधर जाएगा फिंगर? कहाँ ट्विस्ट हो रहा है? इन टू द प्लेन. देखिए ये आपका क्या है? ये क्या है? करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, यानी कि आपका वायर ये रहा. तो आपकी फिंगर है, फिंगर ये रही. फिंगर आप पॉइंट पी की तरफ रखिए
एंड ट्विस्ट इट, इनवर्ट ट्विस्ट कर रहे हैं तो कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड? इनटू द प्लेन। क्लियर? और मान लीजिए ये करंट ऐसे ना फ्लो करे, ऐसे हो रहा है अपोजिट, तो देखिए अब आपको ट्विस्ट करने में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो कुछ नहीं, आपने जब करंट बॉटम से टॉप पे जा रहा था, देन यू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। लेकिन अब जो करंट जा रहा है कहाँ जा रहा है? टॉप से बॉटम, अपोजिट कर दीजिए, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? तो ये हुआ राइट हैंड पाम रूल, वेरी वेरी इजी। इससे भी इजी क्या है आपका स्क्रू रूल, आई एम टेलिंग यू डैट। क्लियर? सो कोई भी डाउट किसी का बता देना, यू आर फ्री टू आस्क, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। दिस इज अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज माई थंब। थंब कहाँ है? थंब इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। क्लियर? देन फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है? इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ऐसे होगी। तो आपको अगर ड्रॉ करने के लिए आ गया, मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी? देखिए कंडक्टर एरिया, करंट एरिया कैसे कर्ल हो रही है, मेरी फिंगर ऐसे हो रही हैं, यानी कुछ ना कुछ सर्कुलर, ऐसे कुछ ना कुछ सर्कुलर लाइंस बनेंगी। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दिस इज माई कंडक्टर। क्लियर? समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत? तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे ड्रॉ करने को बोलता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। अगर आपसे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है, यू विल यूज़ द राइट हैंड रूल। क्लियर? अगर आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछता है, देन यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑलवेज रिमेंबर, जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज मेजरली यूज टू इंडिकेट द फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए, while right hand rule is majorly used to indicate the direction of magnetic field. Clear? And screw rule is also very very important. This indicates the direction of force. It is very very easy, I am telling you now minute, just understand. आप लोगों ने स्क्रू तो घरों में यूज़ करा होगा, स्क्रू कभी यूज़ करा है? कभी पेज को खोला है स्क्रू ड्राइवर से? खोला होगा आप लोगों ने। क्लियर? तो देखिए ये रहा आपका स्क्रू, स्क्रू ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ना। क्लियर? अब मान लीजिए आपने क्या पढ़ा था, आपने एक लॉ पढ़ा था आपने, लॉरेंट्ज फोर्स, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी आपने पढ़ा था। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? समझ आ गया आपको? अब ध्यान से देखिए क्या करना है, यू नीड टू फाइंड व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द स्क्रू रूल। अब स्क्रू रूल कैसे लगाना है? फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। क्लियर? अब मुझे V से B तक जाना है। देखो V क्रॉस B है, V क्रॉस B, इट मीन्स आई हैव टू मूव फ्रॉम V टू B। अगर मुझे V से B तक जाना है, V क्रॉस B का मतलब क्या है? V से B तक चलिए, V से B तक चलिए, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वेरी वेरी इजी। अब ध्यान से देखिए, इस स्क्रू को मैं स्क्रू ड्राइवर से क्या V से B तक जाना है, यानी कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो मैं क्या करूँगा? पेचकस लूँगा, आई विल यूज़ द स्क्रू ड्राइवर एंड इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा, तभी तो मेरा V पॉइंट V तक जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी है, तभी तो मेरा B के अलॉन्ग जाएगा। V क्रॉस B का मतलब यही है। तो जब मैं V को B की तरफ लेके जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराऊँगा, देन व्हाट हैपन, मेरा जो स्क्रू है, माई स्क्रू विल कम आउट। क्लियर? स्क्रू कहाँ आएगा? बाहर आएगा। इट विल कम अलॉन्ग माई फेस, मेरे फेस की तरफ आएगा स्क्रू। ध्यान से देखिए, इट विल कम आउट ऑफ द प्लेन, दैट इज द, जिस डायरेक्शन में स्क्रू बाहर निकलेगा,
दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, समझ आ गया। मान लीजिए अगर ऐसे ना देके आपको ऐसे दे देता, वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नाउ? अब क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कैन एनीबडी टेल मी? इफ यू कैन टेल मी देन आई कैन अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बहुत आसान है, देखिए क्या है, v क्रॉस v, v से b की तरफ जाना है, तो देखिए v से b की तरफ कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज मूव करके। क्लियर। तो देखिए इस स्क्रू को कैसे घुमाना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा स्क्रू है, ये मेरा स्क्रू है, दिस इज माय स्क्रू, और मैं स्क्रू से मान लीजिए ये हमारा क्या है, दो वेक्टर लटके हुए हैं, एक मतलब वेक्टर मान लीजिए, एक पत्ती ये रही, एक पत्ती ये रही। क्लियर, स्टील की पत्ती है। आपको इस ऊपर वाले जो वी वेक्टर है इसको इसके ऊपर लेके आना है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लियर, क्लॉकवाइज व्हेन यू रोटेट दिस स्क्रू देन व्हाट हैपन, दिस वी विल अप्रोच टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्क्रू कहाँ जाएगा? दिस स्क्रू विल गो इनसाइड। क्लियर, when this screw will go inside then what happen, where will this screw go? This will go into the plane। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? into the plane, यानी कि क्रॉस। क्रॉस मीन्स into the plane, डॉट मीन्स आउट ऑफ द प्लेन। दिस इज, ये सब क्या है, स्क्रू रूल हो गया, राइट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब मैं इससे भी इजी मेथड बताता हूँ आपको, दैट इज़ वेरी वेरी इजी, दैट इज़ एल्जेब्रिक मेथड। आप लोगों ने ये सारे मेथड पढ़े होंगे, लेकिन ये एल्जेब्रिक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको शायद आपने पढ़ा हो, बट मोस्टली बच्चे यही करते हैं, एग्जाम में लगा देते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, अच्छी बात है, जल्दी लग जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या तेज़ी से करना होता है कंपटीशन का। देन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इजी वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, वेक्टर में आई जे के कंपोनेंट पढ़े होंगे, व्हाट इज आई, व्हाट इज जे, यू नो वेरी वेल, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यू नो वेरी वेल। तो ध्यान से देखिए, दिस इज माई आई वेक्टर, दिस इज जी, दिस इज के। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो आई वेक्टर है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर। इफ माई, फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। क्लियर, एक पार्टिकल है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपसे एग्जाम में, एंड द क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यू कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन निकालना है। अब वहाँ एग्जाम में थोड़े ना आप ये रूल लगाने बैठे, निकाल तो लोगे, बट इट विल टेक टाइम। क्लियर। सो आई एम टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट दैट डायरेक्शन इन अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आई क्रॉस जे आपने पढ़ा होगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, के। ऐसे चलिए, जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, आई, एंड के क्रॉस आई क्या होता है आपका, जे। तो ध्यान से देखिए, अब अपोजिट कर दूं, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज वेक्टर है। बट स्केलर होता अगर ये, तो ए डॉट बी को आप कह सकते हैं बी डॉट ए। नाउ सी, एफ इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, मैं इसको क्या मानता हूँ, पहले हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये दिया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। उसको आप क्या लेंगे, कंसिडर दैट टू बी द पॉजिटिव चार्ज। आप पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स निकालिए पहले,
क्लियर, और उसका अपोजिट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, दिस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम इसको डिनोट करेंगे वेक्टरली आई से। इसकी डायरेक्शन क्या होगा, आई वेक्टर के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन यानी कि पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, के डायरेक्शन में। इस फॉर्मूले में अगर मैंने पुट किया, ये इसका मैग्नीट्यूड v हो गया, F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। तो ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा है, इज इट विजिबल टू एवरीवन, ओके, इज इट विजिबल। तो ध्यान से देखिए, क्यू v, वेलोसिटी कहाँ है देखिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है आई वेक्टर, क्रॉस इसका मैग्नीट्यूड क्या है b, डायरेक्शन क्या है k। तो देखिए आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, माइनस जो भी आप सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर लेना v भी करके, और डायरेक्शन क्या आएगी, आई क्रॉस के क्या हो गया, जब के क्रॉस आई क्या है जे, आई क्रॉस के क्या हो गया, माइनस जे। इट मीन्स व्हाट, ये जो आपका फोर्स है इट इज एक्टिंग इन द माइनस जे का मतलब क्या है देखिए, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इस क्यू चार्ज पे, ये जो भी चार्ज है हमने इसको मान देते हैं, मान लीजिए क्यू क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता, तो क्या करते आप, क्या होता है क्यू पे, नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस ई वी बी, ऐसे लिखते, ठीक है, समझ आ गया आपको, क्लियर। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा आपका, नेगेटिव जे, क्लियर हुआ आपको। यहां तक किसी को कोई डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी। याद रखना, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या देता है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन हम लोग नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आप डायरेक्शन निकाल रहे हैं फोर्स का, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this video please share, subscribe and share to your friends, अदर स्टूडेंट्स को भेजिए ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू once again, thanks a lot, thank you।